नमस्कार। आज के टेली कॉन्फ्रेंसिंग के इस सत्र में हम अपने उन विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं जिन्होंने स्नातक उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम विकास भारत में ग्राम विकास ERD 01 को एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में चुना है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के पिछले सत्र में हमने आपसे जो चर्चा की थी वो भारत की ग्रामीण सामाजिक आर्थिक संरचना पर, जिनमें हमने आपको ग्रामीण संरचना से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपसे चर्चा की थी। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी ग्राम विकास कार्यक्रम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उस चर्चा के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिसके जाने बिना आप कार्यक्रमों के बारे में बताना चर्चा को अधूरी छोड़ना है। हम ऐसी संस्था के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके बिना ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह संस्था है पंचायती राज। पंचायती राज संस्था पर भारत में पंचायती राज संस्था का किस तरह से विकास हुआ, इसकी जड़ें किस तरह से हमारे इतिहास में रहीं और आगे चलकर ये पंचायती राज संस्था आज के समय में किस तरह से विकसित हुई, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के पुरानीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वरनारायण मिश्रा को एक रिसोर्स पर्सन के रूप में इनवाइट किया है। अब मैं डॉक्टर मिश्रा से निवेदन करूंगा कि आपको पंचायती राज संस्था के बारे में कुछ मौलिक जानकारी दें। डॉक्टर मिश्रा। In modern days, Panchayati Raj system has been popularized by Mahatma Gandhi. But roots of this system go back to Rigvedic times. In Rigvedas we find references of Ganaj and Ganpati. These Rigvedic community was based into villages. So these Ganaj were nothing but some kind of village council, and confederation of Ganaj was a tribe. The Ganpati, the Raja in Rigvedic period, was an elective institution. In monarchy also, in all the ancient systems, whether republics or monarchy, village has remained a basic administrative unit. In the Vaisali Confederation of 12 tribes constituted the Vaisali Republic. So in monarchy, in Kautilya talks about village as basic administrative unit, Grampati and Gramin as state officials, and he talks about Sthanik Confederation of around 400 villages. So basic administrative and economic unit in India has always remained a village. Gandhi, in his quest for building a non-violent and peaceful society, Gandhi pleaded for implementation of Panchayati Raj system as a process, as a means to move towards his aspired enlightened anarchy. Gandhi looked at Panchayati Raj system as a system of an ordered anarchy of confederation of, in fact, oceanic confederation of villages, where village being at the center, it is of the oceanic circles, and then confederation of villages constitute a taluka, confederation of talukas constitutes a jila, and confederation of jilas constitutes a Suba, and confederation of Subas constitutes a nation. So Gandhi's theory of governance, Gandhi's theory of participatory democracy was that of decentralization and participation at grassroots level. Gandhi wanted to make
village as a self-sufficient, self-reliant, administrative as well as economic unit. But Gandhi's plans of Panchayati Raj were suited for a pre-modern agrarian economy. After independence, those who took over the governance of India, for them nation building meant industrialization. Still, they did not leave Gandhian concept of Panchayati Raj, and in 1952, after the elections, in order to promote and refine the available material and human resources of Indian villages, community development policy was envisaged. And in 1957, a Ministry of Community Development was created. In the same year, Balwant Rai Mehta Committee was constituted to look into the implementation of Panchayati Raj system into Indian polity. Specific features and main points of Balwant Rai Mehta report were that it was to be created a democratic participatory system at grassroots level at the initiative of the government. In his words, it was a government's program with people's participation and vice versa. That is, people's program with government participation. Another specific feature of Balwant Rai Mehta report was that it recommended delegation of all the powers of self-government to local bodies and reserved only the role of guidance and supervision and planning at higher level for the government. Balwant Rai Mehta recommended a three-tier Gram Panchayat system, a three-tier Panchayati Raj system. The basic unit is Gram Panchayat at the village level, and next unit is Panchayat Samitis at the block level, and finally the Jila Parishad at the district level. The Jila Parishad is entrusted with the responsibility of planning. It has only advisory role and consists of local MLAs, MPs, and the district magistrate is chairman of this Jila Parishad. Jila Parishad also has only consultative role. The implementation of the policies is left to village panchayats and panchayat samitis. In 1977, when Janata Party government came to the power, a review of the Balwant Rai Mehta Committee was felt necessary, and another committee was constituted, which we know as Ashok Mehta Committee. Ashok Mehta Committee's recommendations were different from Balwant Rai Mehta Committee's recommendations, not in essence but only in form. The Balwant Rai Mehta Committee submitted its report in 1978, and it was considered by the Conference of Chief Ministers in May 1979. Few states like Andhra Pradesh and Karnataka implemented the recommendations of Ashok Mehta Committee report. In Ashok Mehta Committee, the Panchayat Samiti was replaced by Mandal Panchayat, consisting of 15 to 20,000 people and approximately 15 to 20 villages. Another reform another change and new suggestion in Ashok Mehta Committee was a planning set, constitution of a planning set at district level. This planning cell consists of specialists like economists, statistician, geographer,
agroeconomists, engineers, and so on. The Jila Parishad will act under a Chief Executive Officer, which generally District Magistrate is the Chief Executive Officer of this Jila Parishad, and Jila Parishad has only advisory role. The implementation of the program is left to Mandal Parishads. डॉक्टर मिश्रा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने क्या बताया। डॉक्टर मिश्रा ने आपको बताया कि पंचायती राज की जब भी हम बात करते हैं तो गांधी जी की याद स्वाभाविक है, क्योंकि जो मूल संकल्पना आधुनिक भारत में पंचायती राज की है उसकी जड़ में गांधी की विचारधारा या गांधी जी की सोच निहित है। मिश्रा जी ने ये बताया कि जो पंचायत की जो जड़ें हैं वो हमारे वैदिक काल में कहाँ थीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहाँ थीं। उसके अलावा आज़ादी के पहले भी हम आपको यह बता दें कि आज़ादी के पहले सन 1942 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था, उस समय उस अकाल से निपटने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसको अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन कहा गया। वो आंदोलन की कुछ हद तक अन्न उत्पादन में बहुत प्रभावशाली रहा। उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं जब देश 1947 में आजाद हुआ तो उस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए एक बीटी कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति। इस समिति ने जो अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन था, कैंपेन था, उसकी कार्यपद्धति को, उसकी विशेषताओं को तथा उसमें क्या त्रुटियां हैं सबको उस समिति ने जांचा परखा और उस समिति को बताया कि ये अपनी सिफारिश में बीटी कृष्णाचारी ने स्पष्ट किया कि क्या चीजें हम और निहित करें, समावेश करें किन तत्वों का, तो हम इसको और प्रभावशाली बना सकते हैं। उस समिति में उन्होंने कहा कि एकीकृत ग्राम की संकल्पना जो है बीटी कृष्णाचारी ने किया, उन्होंने एकीकृत ग्राम विकास के लिए, जिसमें ग्राम विकास के विभिन्न पहलुओं को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को एक जगह रख करके एक साथ विकसित करने की बात कही कि अगर तीनों पक्षों को हम विकास की दिशा दें तभी ग्राम विकास संभव होगा। उनकी संकल्पना की जो मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने 100 से लेके 100 से और 120 गांव को का एक तालुका के रूप में बनाया, जिसको कि बाद में विकास खंड के रूप में जिसकी संकल्पना आई और 5-6 गांव के स्तर पर एक ग्राम कार्यकर्ता की नियुक्ति की बात उस समिति में की गई, जो कि गांव के लोगों को हर विकास के विभिन्न पक्षों से अवगत कराएगा। यही आगे चलकर जो पंचायती राज में जो कार्यान्वयन की पद्धति है, यही धीरे धीरे किस तरह से विकसित होकर के आज जो पंचायती राज का जो रूप हमारे सामने आया है उस रूप में परिवर्तित हुआ है। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो बीटी कृष्णामाचारी की रिपोर्ट थी अधिक उपजाऊ जांच समिति की, उसके रिकमेंडेशन पे एक विकास खंड की संकल्पना की गई और 5-6 गांव के समूह के लिए एक विकास कार्यकर्ता की संकल्पना की गई और एकीकृत ग्रामीण विकास की जो संकल्पना आई वो इसी समिति से आई। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत की सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को 1952 में लागू किया छोटे स्तर पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो उद्देश्य था कि किस तरह से विभिन्न कार्यक्रमों को जो कि ग्राम विकास के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर हैं, विकास के लिए आवश्यक हैं, उन सारे तत्वों को निवेश किया गया। लेकिन अंत में ये पाया गया कि ये कार्यक्रम बहुत हद तक सफल नहीं रहे। इस सफलता को, इस कार्यक्रम के पीछे मूल कारण क्या रहे, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए, ताकि इसको अधिक ढंग से प्रभावी बनाया जा सके, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता ने इन कार्यक्रमों की विफलताओं के प्रमुख कारणों को देखा और ऐसा पाया कि
जो कार्यक्रम सरकार चलाना चाहती है उनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होती है या स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। सरकारी अधिकारी कार्यक्रम चलाते हैं और स्थानीय लोगों उस कार्यक्रमों के लिए उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और स्थानीय लोगों की उपेक्षा के चलते किसी भी कार्यक्रम का प्रभावी होना संभव नहीं हो पाया तथा कुछ ऐसा माना गया कि जो संसाधनों का संचालन जो है ग्रामीण लोगों में जो प्रभुता वाले लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उन लोगों ने उन कार्यक्रमों का उपयोग अपने निहित स्वार्थों के लिए किया, जो भी एक मूल कारण रहा कि जो आम लोग थे वे इन कार्यक्रमों से दूर होते गए। इन तथ्यों को जानते हुए बलवंत राय मेहता ने 1959 में एक जो रिकमेंडेशन दिया पंचायती राज संस्था के लिए कि एक संस्था होनी चाहिए, पंचायती राज संस्था, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अति आवश्यक है। इस संस्था में के पीछे जो मुख्य मूल दो उद्देश्य थे वो था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो शक्ति का है वो विकेंद्रीकरण रहे और आम आदमी भी इस की प्रक्रिया से जुड़े, और दूसरा ये कि नियोजित कार्यक्रम जो हैं उनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी को किस तरह से प्रोत्साहन किया जाए, विकास के कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए और इन दोनों उद्देश्यों के साथ किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े हुए वर्ग को देश की मुख्य विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, इसका प्रयास के लिए जो बलवंत राय मेहता ने एक पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना सरकार को दी। इस संकल्पना के अंतर्गत त्रिस्तरीय 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का गठन होना था। ये तीनों स्तर थे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, विलेज स्तर पे जो कि 100 से 120 गांव के बीच के गांव का जो समूह जिसकी संकल्पना टी कृष्णाचारी के रिपोर्ट में की गई थी उनको एक खंड स्तर पे किया गया, और जो सबसे बड़ा स्तर था जिले स्तर पर जिला परिषद की संकल्पना की गई, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से जो ग्राम पंचायत थी उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की संकल्पना रही कि किस तरह से चुने हुए लोग गांव का प्रतिनिधित्व करें और कार्यक्रमों को, विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वयन में आम लोगों को किस तरह से जोड़ें। डॉक्टर मिश्रा ने ये भी बताया कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें ये दिखा गया कि विकास के कार्यक्रमों की जो प्रासंगिकता है वो किस तरह से सरकार द्वारा प्रासंगिकता को किस तरह से लोगों ने मूल रूप में नहीं लिया। उसके पीछे उन्होंने मुख्य कारण जो पाया गया कि सरकार ने विकास के कार्यक्रमों में इतनी तेजी से बदलाव किया कि लोगों को समझ में भी नहीं आया, और दूसरे वो जो विकास के कार्यक्रम थे उनमें जिस तरह से केंद्रीकृत नीतियां थीं उसमें बहुत हद तक पंचायती राज संस्थाओं का या ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का की भूमिका नगण्य थी। इन सब चीजों को लेके थोड़ी सी उदासीनता हुई, लेकिन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली 70 के दशक तक आते आते धीरे धीरे पतन की तरफ आने लगी, और इसके बाद जो है अशोक मेहता कमेटी की एक समिति का गठन 1977 में किया गया। अशोक मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, उसके विभिन्न पक्षों को देखा, उसमें की त्रुटियों का अवलोकन किया कि क्यों स्थानीय लोगों की भागीदारी विकास के कार्यक्रमों में नहीं है, तांत्रिक प्रक्रिया का जो विकेंद्रीकरण किस तरह से बीच में ही उलझा पड़ा है। इन सब पक्षों को देखते हुए अशोक मेहता ने एक द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की अवधारणा को सरकार के सामने रखा, जिसको कि सरकार ने कुछ लागू भी किया। वो द्विस्तरीय प्रणाली मंडल स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, और लेकिन अशोक मेहता समिति की जो प्रमुख त्रुटि रही कि इन्होंने गांव के महत्व को नहीं रखा। इन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिश में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को कोई महत्व नहीं दिया गया, और
इस तरह से एक जो 4-5 गांव मिला के मंडल बनाने का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मंडल के लिए थे, ये सारी चीजें होने के बाद अशोक मेहता की भी सिफारिश के हिसाब से जो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया गया, वे भी बहुत सफल नहीं रही और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिस पर चर्चा हम करेंगे। अब डॉक्टर मिश्रा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। Gandhi's concept of Panchayati Raj system, in fact, is identical with his Congress organizational structure. If we look at it, the traditional Congress organizational structure begins with the village as its basic unit. Gram Samiti and Congress Working Committee was the apex body, starting from Gram Samiti, Jila Samiti, Provincial Committee up to the Congress Working Committee, which was the apex body of the Congress. Gandhi visualized the future governance with the same organizational structure, with decision-making process beginning from the below, from the grassroots level. The decision not being taken at the apex, but apex having only advisory and ratifying role. But Panchayati Raj system could not be implemented beyond the district level, as we accepted the Westminster system of the government. And Panchayati Raj system is not only visualized as an economic and social unit, but also as an educational unit, as an experimental ground for participatory democracy, training of the leadership, and training in the process of the self-governance. In fact, main goals of the Panchayati Raj system in the rural development, in fact, community development and rural development were main objectives of Panchayati Raj system. Main goals of the Panchayati Raj systems are to fill the gap between organizational arrangement and people's participation of beneficiaries in implementation of the rural development policies and programs. It was also visualized as the center of conscientization and to instill confidence among the people in order to promote social and political efficacy of the poor people and the deprived sections of the society. Panchayati Raj system was also envisaged as an instrument of empowerment of deprived sections of the society, particularly Dalits and women. Traditions weigh on our heads as dead bodies of the past generations. Traditions do not go away so soon. In a patriarchal Varnashram society, Dalits and women could not be so easily empowered in this reform process. Nevertheless, with the reservation for the Dalits and women, initially most of the work were done by the upper caste and the husbands of the women sarpanch or women village heads. But gradually, with 1, 2, 3 women asserting their rights to their position, it has gradually, though not in a revolutionary process, it has helped in the direction of empowerment of the deprived sections of the society, particularly women and the Dalits. Panchayati Raj institutions are also visualized as instruments in change from tradition to modernity, by creating uniform patterns of organizational infrastructure at the local level to design and implement the rural development programs. It is also looked at filling the gulf between official and civil aspects of the society, that is, the gulf between state and
civil society. It is also aimed at human resource development with higher motivational level needed for the vigorous economic change. So, Panchayati Raj institutions are aimed at Panchayati Raj institutions are aimed at enabling the village as self-sufficient, self-reliant, economic, social and political unit. At the same time, they also aim at conscientization of the people in creating an egalitarian, non-violent and cooperative consciousness and sense of collectivity among the people. So we see that Panchayati Raj institutions are not looked at as only economic or social instruments, but also a political instrument by way of building particular kind of egalitarian, non-violent, communitarian consciousness among the people, in developing a feeling of solidarity and fellowship with the other villagers, with the other fellow human beings. डॉक्टर मिश्रा, पंचायती राज की जो संकल्पना है, गांधी जी की जो विचारधारा थी, उसमें था कि किस तरह से ग्रामीण पंचायतें ग्राम स्तर पर कार्य करें और ऊंचे स्तर पे जो कांग्रेस पार्टी की जो संस्थाएं हैं वो सिर्फ एक पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। ऐसा पाया गया कि बहुत समय तक ये गतिविधि चलती रही। जैसा कि अभी हमने पिछले टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र में जिस दृष्टिकोण पर चर्चा की, जो पैतृकवादी दृष्टिकोण और जनवादी दृष्टिकोण जो विकास के हैं, उनके तहत पैतृकवादी है कि दृष्टिकोण की अवधारणा जो थी उसमें यह था कि जो मूल संकल्पना है कि गांव के लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं, अभी के उन लोगों के पास अभी इतना ज्ञान नहीं है कि वे अपने विकास के लिए क्या आवश्यक है इसको समझ सकें और आवश्यकता अनुसार उसमें विकास की प्राथमिकताओं को बदल सकें तथा अपने विकास की दिशा को निर्धारित कर सकें। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक होगा कि किस तरह से सरकार ऐसे प्रयास करे या ऊपर से ऐसे प्रयास किए जाएं जो कि विकास की दिशा को सही दिशा में ले जा सके, विकास की दिशा को सही दिशा में ले जा सके। दूसरा जो दृष्टिकोण रहा, जनवादी दृष्टिकोण रहा, जिसमें ये मानना था कि आम आदमी अपनी प्राथमिकता जानता है, वो ये जानता है कि वो किस तरह से विकास कर सकता है और किस तरह से वह अपनी विकास को एक निर्धारित दिशा दे सकता है। इसके लिए किसी के ऊपर से किसी के निर्देशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको अपने विकास के लिए जो इच्छित चीजें हैं, जो वांछनीय चीजें हैं, वो मिलनी चाहिए। ये रही जनवादी दृष्टिकोण की भावना। गांधी जी के जो पंचायती राज की अवधारणा थी वो मूलतः जनवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है। विकास के आजादी के बाद एक लंबे समय तक 20-25 साल तक जब ये देखा गया कि ग्राम विकास की जो दिशा है वो सही नहीं है, जो जितने भी प्रयास हो रहे हैं उनसे वांछित जितना आशातीत सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं की कार्य पद्धति में किस तरह से सुधार लिया जाए, उनकी संरचना में किस तरह से सुधार किया जाए, इसके लिए बलवंत राय मेहता से लेकर भारत के 73वें संविधान संशोधन तक बहुत सारी समितियां बैठी, जिन समितियों में महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे, जिसमें प्रशासनिक सुधारों पर जिसने ध्यान दिया, सरकारिया आयोग ने भी मतलब ग्राम पंचायतों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया, संगमा समिति जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी की एक समिति थी जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में
किस तरह से सुधार किया जाए, ये बहुत सारी समितियों ने समय समय पर इसके सुधार के लिए सुझाव दिए गए। क्योंकि मूल रूप में यह पाया गया कि जो कार्यान्वयन में, ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आम लोगों की भागीदारी नहीं हो रही है, और जो कार्यक्रम के जितने प्रयास हो रहे हैं उनके लिए जो नीति का निवेश किया जा रहा है वो वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है, या उसमें बीच में ही कुछ लोग गड़बड़ी हो रही है, जिससे ग्राम विकास को सही दिशा नहीं मिल रही है। इन सब समितियों के रिकमेंडेशन के बाद अंत में ये निर्णय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक सशक्त पंचायती राज संस्था बनाई जाए, और उसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और पंचायती राज को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसके अनुसार भारत में पंचायती राज एक आवश्यक संस्था के रूप में उत्पन्न हुआ, विकसित हुआ। यह संस्था ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है। इसमें लोग जनतांत्रिक रिप्रेजेंटेशन भी है, इसमें जनतांत्रिक नेतृत्व भी है, आम लोगों की भागीदारी है तथा विकास कार्यक्रमों में लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। हम 73वें संविधान संशोधन पर अभी चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ईशना मिश्रा। 73rd Constitutional Amendment Act is a step forward in the direction of the empowerment of the deprived sections of the villages, and also to provide greater autonomy for the village panchayats, for the gram panchayat. In the existing structure, in every village there is a elected gram panchayat with a village head, and members of the elected members of this panchayat, who are executive members of the governing body of the panchayat system in the village level, plus there is a village development officer who is a government employee. All the financial and developmental policies are implemented with joint signature of the village panchayat, the sarpanch, the village head, as well as this village development officer. Now, because of the lack of the consciousness about their rights, in many cases the village development officer, in connivance with the high officials, manipulates the development process and the financial allotments and the real development. So in order to check that, government has created a grievance and vigilance committee at the village level. In the 73rd Amendment Act, people are given limited right to impeach and bring a no confidence motion against a corrupt or inefficient village head, but that has probably not, there has been no case of people bringing no confidence motion or impeaching a village head, except in few cases some women village heads were prevented from doing their official duty. Nevertheless, the reservation for the women has created a new feminist consciousness among rural women. Reservation for the Dalits and tribals has created new lower class consciousness among the, and the sociology and socio-political situations of the villages, it's fast changing. The villages of India along with the cities are witnessing a new feminist assertion and scholarship, a new Dalit assertion and scholarship, and I think the Panchayati Raj institutions and the reservation system for the deprived sections, Dalits and women, have contributed
sufficiently towards this consciousness among Dalits and the women. जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन को भारत संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया, इसके पीछे जो मूल मंशा थी कि किस तरह से गांव के पिछड़े वर्ग को जो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, विकास की मुख्य धारा में लाया जाए तथा उनको किस तरह से विकास के कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। इस दिशा में या संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें पहली विशेषता है कि एक जनता द्वारा चुनी गई ग्रामीण क्षेत्रों, गांव के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा चुनी गई एक ग्राम सभा की संकल्पना रही। गांव में गांव पंचायत की कल्पना हुई। इस चुनाव के 2 तरीके हुए। गांव को विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटा गया और ये सारे उपभाग गांव की सभा के रूप में रहे और गांव का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा का सदस्य रहा। इसके पीछे मंशा थी कि गांव के प्रधान को गांव की संस्था में चुनने के लिए गांव के सभी वर्ग के लोग अपनी भागीदारी दे सकें। जैसा कि पिछले अनुभवों से देखा गया कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले पिछड़े तक, विशेषकर महिलाएं, विकास कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी जैसी कि उनसे अपेक्षा की जाती है नहीं दे पाती, या यह कहा जाए कि उनकी भागीदारी नहीं के बराबर होती थी, वो भी एक प्रमुख बात रही। इसके लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण का प्रावधान सर्वप्रथम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए किया गया। राज्य में उनकी का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से उतनी प्रतिशत सीटें ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान बनाया गया। इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण आरक्षण का तत्व पंचायती राज संस्था ने दिया, वो था महिलाओं का आरक्षण। हर क्षेत्र से, हर ग्राम सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। उन सीटों पर चुनाव सिर्फ महिलाएं ही लड़ सकती थी। यह आरक्षण पूरे सीटों के गांव में जितने सीटें होती थी उनकी 1/3 पार्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। यह सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए ही नहीं था, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में जहां पर ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व था या ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगं के लिए जहां आरक्षण का प्रावधान था, वहां भी उनकी सीटों में भी 1/3 सदस्य महिलाओं के 1/3 सदस्य महिलाओं को बनाना था। ये सभी चयन के माध्यम से ही संभव था। दूसरा जो महत्वपूर्ण था कि पंचायती राज संस्थाओं में सीधे चुनाव की व्यवस्था की गई। पहले जो था कि कुछ चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वही लोग मिलके मध्य स्तर पे, बीच के और ऊपर के स्तर के लोगों को चयन करते थे। लेकिन इस संस्था के अंतर्गत, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो प्रावधान बनाया गया कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से ही चुने हुए लोग, सीधे चुने हुए लोग मध्य स्तर पे या खंड स्तर पे या जिला स्तर पे अपना प्रतिनिधित्व या निर्धारित कर सकते हैं, या अपने नेतृत्व को चुनने में इन सदस्यों की क्या भूमिका होगी। इसके लिए यह प्रावधान बनाया गया कि खंड समिति के अध्यक्ष को चुनने के लिए हर गांव या 1-2 गांव सभाओं को जोड़ करके एक प्रतिनिधि का चयन किया गया, जो सीधे जनता द्वारा सीधे चुना जाता था। तथा जिला परिषद के सदस्यों को, जिला परिषद के अध्यक्ष को के निर्वाचन के लिए भी ग्रामीण स्तर पर सीधे लोग जिला परिषद के मेंबर का चयन करते थे, जो प्रत्यक्ष वोट से होता था, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ही किया जाता था।
इन सब चीजों को देखते हुए ये मूल मंशा ये थी कि किस तरह से गांव के पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति के लोगों को तथा महिलाओं को जो विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से नहीं निभा पा रही हैं, उनको किस तरह से लाया जाए। इसके लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान रखा गया और ये इन प्रावधानों के साथ ये कार्यकाल भी 5 साल का निर्धारित किया गया कि हर ग्राम सभा की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से 5 साल में ही होंगे, जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि पिछले अनुभव में पाया जाता था कि कभी कभी प्रशासन में बैठे लोग यदि उनको सुविधाजनक नहीं लगता था तो पंचायती राज संस्थाओं को या पंचायतों को बर्खास्त कर देते थे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये प्रावधान बनाया गया कि संस्थाओं का जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। इस 5 साल की अवधि के बीच अगर किसी अनियमितता के कारण या किसी कारण से अगर कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उस स्थान की पूर्ति भी 6 महीने के अंतर्गत नए चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा। और जो इसके साथ साथ एक नए फाइनेंस कमीशन की बात की गई कि एक वित्त आयोग होगा। यह वित्त आयोग जो गतिविधियों का जो आर्थिक गतिविधियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाई जाएगी उनकी निगरानी करेगा और राज्यों के लिए एक अलग चुनाव आयोग की भी संकल्पना की गई कि ये चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों को कि हम पंचायती राज संस्था के कार्यान्वयन से संबंधित जो बातें उनको बता रहे हैं वे उनकी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए है। आपके पाठ्यक्रम में जो चीजें पंचायती राज संस्थाओं तक बताई गई हैं उनमें भारत के 73वें संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं है। आज अगर पंचायती राज या ग्राम विकास के संदर्भ में अगर हम 73वें संविधान संशोधन का जिक्र आपसे न करें तो आप की जानकारी बहुत ही अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज पंचायती राज संस्था एक सशक्त संस्था के रूप में उभर कर आई है जो कि ग्राम विकास के कार्यक्रमों का न सिर्फ कार्यक्रमों को बनाती है बल्कि उनका कार्यान्वयन भी करती है। यहां तक कि उन कार्यक्रमों की निगरानी का भी अधिकार ग्रामीण संस्थाओं को है। और आज पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि पहले नहीं थे और आज उन विषयों के होते हुए ग्रामीण भारत में ग्रामीण विकास संस्थाएं एक महत्वपूर्ण संस्था है और इस संस्था की चर्चा किए बिना हम विकास की कल्पना या विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बात के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ पर ये उल्लेख कर देना चाहते हैं, यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने जो अपने पाठ्यक्रम उनके पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु दी है उन्हीं पर तैयारी करें। हमारी जो चर्चा है हम आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कि आज पंचायती राज की दिशा में या ग्राम विकास के क्षेत्र में हम कहां तक आगे आ गए हैं, हम समय समय पर आपको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र के द्वारा आपकी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। अगला सत्र जो है हम ग्राम विकास कार्यक्रमों को लेंगे जो कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही होता है। अगले सत्र में आपसे चर्चा जारी करेंगे। धन्यवाद।